आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त मेल टुडे की तरफ से एक एजुकेशन समिट, एजुकेशन कॉन्क्लेव कराया जा रहा है। स्मृति ईरानी 40 साल से कोई किताब नहीं लिखी, तो मैं यकीन दिलाकर आपको कहती हूँ कि रात के 9 बजे के इंडिया टुडे के प्रोग्राम पर आप भी एक पैनल को बुलाकर उस पर झगड़ा कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेल टुडे हमारा ही है। एक सेकंड, वही मैं कहना चाहती हूँ। कहाँ है मेल टुडे का एडिटर? हाँ, वहां बैठे हैं। अब इन सज्जन ने एक कहानी लिखी। अगर इस कहानी में वाकई में आपको कोई ठोस मसाला दिखता सरकार के खिलाफ, तो आज रात को आप 9 बजे उस पर कहानी जरूर चलाते, आज तक पर उस पर विशेष जरूर होता। लेकिन ये दोनों हुए नहीं, जो अपने आप में एक सवाल पैदा करते हैं कि ये क्रिप्टिक साइलेंस क्यों, सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? You talk about selective outrage, but isn't there also selective outrage when we talk about what's happening, for example, in the Delhi University? The Delhi University this year, the new session started today. First year is studying something else, a different pattern. The second year is studying a different pattern. The third year is studying a different pattern. When has this happened in the past? Is this a mess? And who's responsible for this? When I got the responsibility in the ministry, I was told that there is a course which has enrolled 77,000 students. When I asked what is the parameters of the courses that the students are enrolled in, I found that they did not have the approval of the visitor, which is the President of India. Now, in the context of having absolutely no approval from either the visitor or, for that matter, in some courses, nor the regulator, I had 77,000 children enrolled in courses where their degrees at the end of the day would not have been valid. I was cautioned and told, चुप रहिए आप, ये चल रहा है रिफॉर्म के नजर से, और अगर आप इसमें कुछ हस्तक्षेप करेंगी तो हंगामा हो जाएगा। You were threatened as a minister? हाँ, were you threatened? That happens where you're politely nudged in a particular direction. Nobody would threaten you, but they would caution you कि जी कल फिर अखबार में कुछ निकल जाएगा, फिर आप ही को तकलीफ होगी, इस विषय को छोड़ दें। मैंने कहा उन 77,000 बच्चों का क्या, जो 4 साल बाद जान पाएंगे कि जिस डिग्री के लिए मैंने 4 साल मेहनत की, उस डिग्री का कोई मोल नहीं। They are supposed to be collateral damage. And I refused to keep quiet about collateral damage when it came to the future of our children. And I spoke up and I said, let the law of the land follow course. I was told that the university acknowledged the fact that there were certain gaps and rolled it back. Okay. अगर आप ये चाहते हैं कि पीआर की दृष्टि से मैं सारे अनकंफर्टेबल सवाल करना बंद कर दूं, मैं कोर्स करेक्शन करना बंद कर दूं, तो where are we different from the सरकार that you voted out? Okay, so is Smriti Irani in the past year, has she been trying to cleanse the system from within? I want to specifically ask because there are allegations. There will always be allegations when you challenge status quo. There's a specific allegation when it comes to the HRD ministry that you've singled out your political opponents. Is there a probe? Who is my political opponent? Is there a probe against Teesta Setalvad? Who is the political opponent? When has she ever become my political opponent? Why would you give her so much of space? The allegation is that your political opponents say that you're my singling political opponent was Rahul Gandhi. When did you replace him with Teesta Setalvad? No. The question specifically is there a probe against Teesta Setalvad? Well, I'm not going to discuss with you issues pertaining to my ministry which are not on my table yet. So how would you possibly know what is so-called happening in my ministry unless you have certain documents which are leaked, and then that would actually be against the law of the land? Have you broken the law, Gaurav? Okay. I haven't broken the law of the land, but as a journalist, I have a right to ask you a question. You have a right to ask a question and you've been answered. Move on. Okay, but what has that inquiry found out so far? Is there an inquiry? Did I say there is an inquiry? Or do you want to be another Rahul Kanwal on this show? No? No. So my request to you is that as a journalist you have every right to ask questions, but as a minister I have every right to ensure that paperwork which is within the purview of the ministry does not get discussed until it reaches a logical, legal or constitutional destination. So the process is on. I have not even discussed with you whether there is an existence of a process. Okay. So how can I confirm or deny there is a process?
Was Teesta Setalwad's name dropped from the Central Advisory Board of Education? When the government comes into place, it is the right of the government to have or compose a new Central Advisory Board on Education. It is the right of the government to pick individuals who will be a part of the board. Once the government picks a new board, the old one stands dissolved. Whoever was a part of the old board is no longer a part of the new composition. I think that sufficiently answers your question. Okay. Saffronization of education, and you have been in the line of opposition fire, your political opponents, not just from Amethi, but they have targeted you and they've specifically named names, Yes. Ms. Irani. For example, if I may, there is Vishram Ramchandar Jamdar. He's been appointed. So let me just go name by name. Okay. Now the gentleman that you mentioned, Vishram Jamdar, was very much a part of the planning commission on the Congress government. Is your charge now that the Congress also picks RSS men? The gentleman that you name actually was on the board of the particular NIT that now he's the chairman of. And he was on that board for 10 years while there was a Congress government at the center and at the state. So is your charge that the Congress government at the center and the state picking RSS men? Okay. Professor Inder Mohan Kapahi, who is now a member of the UGC. Yes. And Professor Kapahi was actually employed by Delhi University long before I became a minister. So is your blame that the Delhi University, where a vice-chancellor appointed by the erstwhile government is giving employment to people, okay to appoint so-called saffron men, but it's not okay for me to give them a position? So these allegations you say are baseless because No, it goes I'm on. giving you name by name. Do you have other names? Baldev Sharma, former editor of the Baldev Panchjanya. Sharma was an editor of, I think, Amar Ujala? National Panchjanya. He was also an editor of Amar Ujala or something like that. So is your contention now that newspapers are also hiring RSS men as editors? Panchjanya is the RSS I'm saying, mouthpiece. I'm he saying, heads the National my Book Trust. question is to you that is it that other publishing agencies or newspapers picking men and women of caliber because they have the capacity to deliver a good newspaper, wrong in appointing a person just because they might have a political or ideological inclination which does not conform to yours? Okay. Are you less of a journalist if you vote for the BJP or support the BJP? That I think my viewers will decide. That is something for my viewers to decide. Professor Or Sudarshan, are you less of a journalist as the corrupt regime that was voted out if you voted for them? Okay. Professor Sudarshan Rao, chairman of the Indian Council for Historical Do you know Research. that he was made the national professor by Arjun Singh? If I may, No, so I'm just asking you these pertinent questions on behalf of every name that you're citing. Sure. That these are men and women who actually have not cited a single woman, but these are people who have been picked in previous assignments by the Congress party. You know, Romila Thapar, she wrote in the India Today magazine that one is surprised at the appointment of Professor Sudarshan Rao as chairman of ICHR because his work is unfamiliar to most historians. So if it's unfamiliar to Romila Thapar, that means that it is not to be picked. And do you know what is interesting? There are many people who have written articles against certain appointments. And if I look at the files of the previous government, I find that they were themselves in the running for those posts. And the previous government actually did not deem them fit enough to be picked for that position. So are people like Romila Thapar, Yes. they're doing this because they didn't No, get the I pay? don't know why they're doing it, but I've seen their names on the files and I've seen the rejection by the previous government. So this is vendetta. This is personal vendetta. Is that vendetta by the Congress party? Because they did not pick them. You can't blame me for vendetta. When the Congress is... मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी सवालों का जवाब देते हुए मेल टुडे के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में। आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की नई अध्यक्षा बनी स्वाति से हमारे सहयोगी की बातचीत। आइए आपको फिर से लिए चलते हैं स्मृति ईरानी के उस कॉन्क्लेव में। Ideology, the Vajpayee government also did that, others have also done that. He alleges, or he's of the opinion, that in your government, these people lack academic credentials. That's what I'm saying. There is a Sanskrit shlok which says, Vidya dadati vinayam. Education is supposed to make you much more polite, much more decent. Is any educationist or academician of the opinion that they are the be-all and end-all of
who's to be determined to be right enough to be picked for a particular position? The government of the day has been given a massive support by the people to make choices on behalf of the people. Is there a flaw in the way things have been running so far? The choices made by the governments before, this ICHR project that we speak of, which began in 1972, was Smriti Irani the HRD minister then? I was not even born then. So if we have you found any outrage from these academicians on that issue? कि 1972 से तुम कौन सी किताब लिख रहे हो जो आज तक खत्म नहीं हुई है? आपने कहानी की थी कि 2012 में इग्नू ने आर्मी ऑफिसर्स के सारे सर्टिफिकेट रोक दिए। अब आर्मी का जवान सरहद पर लड़े या इग्नू से लड़े? तब क्या ये कोई भी एकेडमिशियन बोला था आर्मी के समर्थन में? मैं इसीलिए आज के वक्तव्य में शुरू में ही बोल चुकी हूं कि ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? क्यों है ये सिलेक्टिव आउटरीच? अब तो आपको साल भर हो गया। क्योंकि कन्वीनियंट होता है कई बार सिलेक्टिव आउटरीच करना, कन्वीनियंट होता है कई बार कोजी क्लब्स को चैलेंज ना करना। क्या है ये कोजी क्लब जिसे आपने चैलेंज किया है, जो इतना अब हिसाब मांग रहे हैं? ईर्ष्या से जो लोग, ईर्ष्या नहीं है, मुझसे कौन ईर्ष्या करेगा भाई? मेरे में ऐसा कुछ नहीं है जो ईर्ष्या करने लायक। फेमिनिस्ट से हम देख रहे हैं द काइंड ऑफ मटेरियल दैट इज कमिंग आउट। आप एक बार हिसाब मांगे तो एक रिएक्शन स्वाभाविक है। हिसाब मांग के देखिए, रिएक्शन स्वाभाविक है। एंड सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? फॉर एग्जांपल इन दिस ICHR केस, it's not my job to poke my nose into what happens in ICHR. My job is to facilitate an environment where people from various academic backgrounds can come together as per the decision of the autonomous body, and it is my job to ensure that there is no interference from my end in any kind of academic activity. I do not single-handedly run any institution. I ensure that there is absolute distance from every institution, be it ICHR or any other institution. My job is to facilitate a platform where people from various academic streams without prejudice can come together and function. That's it. साल भर हो गया आपको शिक्षा मंत्री के रूप में इस देश की। जी। शिक्षा किस तरह से भारत का भविष्य बदल सकती है? आपकी रणनीति क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, आज से 20 से 22 साल पहले हमारी शिक्षा नीति बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक दुनिया कितनी बदली है, लेकिन नीति हमारी नहीं बदली। और हमारा प्रयास ये था, इस साल 26 जनवरी को हमने शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जनता की भागीदारी को हमने आमंत्रित किया। mygov.com पर हमने 33 ऐसे शिक्षा से संबंधित थीम्स हैं जिसको प्रेषित किया और देश भर की जनता से कहा कि आज तक कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ एकेडमिशियंस बैठकर देश की शिक्षा नीति और शैक्षिक भविष्य तय करते थे। अब हर गांव, हर शहर से हर नागरिक बोले कि किस किस्म की शिक्षा आप अपने लिए चाहते हैं अथवा अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। और मुझे लगता है कि पहली बार शायद स्वतंत्र भारत में ऐसा प्रयास हुआ है। हमने सभी राज्यों की मीटिंग बुलाई मार्च में। हमने कहा कि आपके पास करीबन 2,75,000 विलेज एजुकेशन काउंसिल्स हैं। आप उन काउंसिल्स में जाइए, प्रत्येक गांव में पूछिए किस प्रकार की शिक्षा आपको चाहिए, क्योंकि जो उनके अरमान है शायद वो मेल ना खाते हों उनके अरमानों के साथ जो शहरों में रहते हैं। हमने कहा आप हर जिले में जाइए, हर राज्य स्तर पे बैठक कीजिए, चर्चा कीजिए और उस चर्चा और परामर्श के अंतर्गत आपके पास जो भी विषय आए उसको आप राष्ट्रीय स्तर पे भेजिए। हम राष्ट्रीय संगोष्ठी करने के बाद इन सबको सम्मिलित करके एक नई नीति बनाएंगे जिसमें सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। कब तक? मेरा ये प्रयास है कि सबके जो कमेंट्स हैं वो दिसंबर माह तक आकर हम सब सम्मिलित करके, एक्यूमुलेट करके कम से कम एक ड्राफ्ट जो है उसको जनवरी के महीने तक तैयार कर लें। तो बड़ी खबर है कि अगले वर्ष जनवरी तक एक नई शिक्षा नीति का खाका तैयार हो जाएगा। खाका तैयार होगा, लेकिन उस पर भी फिर चर्चा होगी कि जो खाका तैयार हुआ है उस पर लोगों की क्या राय है। लोगों की राय एक तरफ, एक मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी की क्या राय है? शिक्षा का लक्ष्य क्या है? क्या शिक्षा का लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, धनोपार्जन है, या फिर एक बेहतर इंसान बनना है? क्योंकि अगर हम अपने समाज को देखें समय तो अपराध
बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो स्त्रियों के खिलाफ अपराध हो या आमतौर पर अपराध हो, उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? क्या ये भी मुझे लगता है जरिए? शिक्षा का काम मात्र एक कागज का टुकड़ा जेब में सुरक्षित रहे, मात्र वहां तक सीमित नहीं है। आपने जैसे कहा, शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम है स्वयं को पहचानने की क्षमता को बढ़ाना। शिक्षा का काम है कि स्वजनों को पहचानना। शिक्षा का काम है कि जो स्वजन ना हो उसकी भी सेवा मानवता के आधार पर कैसा करना, इसकी समझ रखवाना। शिक्षा का काम है कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में आपको योगदान देने के लिए सक्षम बनाना। और शिक्षा का काम है कि कागज का टुकड़ा ना भी हो, किंतु आपको इतना स्वावलंबी बनाना कि आप दूसरों के स्वावलंबन में सहयोग दे सकें। और अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा था? नहीं, मुझे लगता है कि ये कहना कि अब तक ये नहीं हो पा रहा था सही नहीं है। कुछ अंशों में सभी ने प्रयास किया है। पूर्ण सफलता मात्र हमारे राष्ट्र में नहीं मिली है, ऐसा नहीं है। चुनौती विश्व भर में है। चुनौती हमारे शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाते हैं, वो मात्र भारत की चुनौती नहीं है, विश्व भर में ये चुनौती है। चुनौती की गणित और साइंस में हमारे बच्चों का प्रदर्शन इतना अच्छा क्यों नहीं है, ये मात्र भारत की चुनौती नहीं है, विश्व भर की चुनौती है। हमारी सरकार के पास इस वक्त जिम्मा ये है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, एक्सेस की कहीं कमी ना हो। तो प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का कैंपेन शुरू किया है, उसके अंतर्गत मेरा प्रयास है, वर्तमान में एनसीईआरटी के अंतर्गत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक जितनी किताबें हैं वो एक मोबाइल ऐप के अंतर्गत मुफ्त में भारत के हर नागरिक तक पहुंचे। लेकिन उस मोबाइल ऐप पर मात्र आपकी किताबें नहीं होंगी, हर किताब का टीचिंग इंस्ट्रक्शन होगा, हर कक्षा 1 से लेकर 8 तक उसका लर्निंग आउटकम होगा। विश्व भर में भारत के बच्चों को आका जाता है कि इनका लर्निंग आउटकम कम है, लेकिन यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं अगर उनसे पूछें लर्निंग आउटकम होता क्या है, शायद उस बात का उनके पास जवाब ना हो। तो लर्निंग आउटकम उस ऐप में सम्मिलित होगा। और हमारी कोशिश है कि हमारी जितनी भी रीजनल SCRTs हैं उनसे हम लोग प्रादेशिक भाषा में जितनी किताबें हुई हैं उसको लेके डिजिटाइज करके इस ऐप के माध्यम से दें। तो दूसरा जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी हो, आपका प्रयास ये रहेगा? हमारा ये प्रयास है कि जैसे स्वयं नाम का एक प्रयास हम अभी कर रहे हैं उच्च शिक्षा की दृष्टि से, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIT, IIMs और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज देना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह है कि स्वयं नाम के इस प्लेटफॉर्म में सारी शिक्षा जो इस उच्च शैक्षिक संस्थानों से आएगी वो भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। स्वतंत्र भारत में ऐसा शैक्षिक क्रांति का कोई नजरिया आज तक रहा नहीं था। और हमारी कोशिश ये है कि 500 सेंटर्स हमने देश में चिन्हित किए हैं जहां पे आप अपनी उस कोर्स को स्टडी करने के बाद अंत का जो फाइनल एग्जाम है सर्टिफिकेशन से पहले, उसे आप उस सेंटर में जाकर देकर अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और राशि कहीं ना कहीं 500, 550 तक ही सीमित रखी है। तो वो देश जहां पर आज बच्चा डिप्लोमा करने के लिए 15-15, 20-20 हजार करने के लिए भागता है हर गली में, वहां पर अगर सबसे प्रचलित शैक्षिक संस्थान आपकी मोबाइल डिवाइस पर या आपके कंप्यूटर पर मुफ्त में आपको शिक्षा दे रहे हैं, इससे बड़ी क्रांति कोई नहीं हो सकती इस देश में। भारत का अपना एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि हम लोग अपना ही इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से वंचित हो रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। क्या आपका ये प्रयास रहेगा शिक्षा मंत्री के रूप में कि हम अपने स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर हमारी भावी पीढ़ी जाने? गौरव जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं रिपब्लिक शब्द कहूं तो आपको कौन से थिंकर याद आते हैं, कौन सा राइटर याद आता है? हम अपने दर्शकों से ही पूछ लेते हैं कि आमतौर पर शब्द अगर मैं रिपब्लिक कहूं, प्लेटो। आपने कभी KP जायसवाल का नाम सुना है? 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी फ्रॉम 150 AD to 350 AD. He actually was also an excavator of ancient sites, and you would be fascinated to know that one of the places that he excavated was also the Nalanda University. Do you know about him? We don't. He actually traced how the Indian republics, this is before India attained independence, were viewed by Greek writers in their countries. So why is it that as an Indian you would know Plato's Republic,
but you would not know KP Jaiswal. So that is a question that confronts me every day. That when you talk about स्वर्णिम इतिहास, आपने मुझसे अपने सवाल में दो शब्द कहे जो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी जनरेट कर सकते हैं. एक आपने कहा स्वर्णिम इतिहास और दूसरा आपने कहा संस्कार. और अगर उन्हीं दो शब्दों के दायरों में मैंने आपको जवाब दिया तो कल सुबह की हेडलाइन होगी स्मृति's आंसर हैज अ सैफरन टिल्ट. जबकि केपी जायसवाल का मुझसे कोई लेना देना नहीं था. इसलिए मेरी इच्छा यह है कि एक शिक्षा नीति आने के बाद उस नीति के आधार पर हम देखें कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं. क्यों शर्मसार हूं हम अगर 1937 में हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति ने मतलब अपना शरीर त्यागा जिसकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस जमाने में हुई, जिसने हमारे यहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज के अवशेष को निकालने में मदद की और जिसका लोहा दुनिया ने माना, लेकिन इसे हम ही भूल गए. क्यों भूल गए हम? तो कहीं ना कहीं जो चीज 1937, 1950 में अच्छी थी वो 2015 में कोई क्यों नहीं पढ़ रहा, उसी को शायद देखने का प्रयास है नई शिक्षा नीति का निर्माण करना. लक्ष्य क्या है इस शिक्षा नीति का? हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं. स्किल इंडिया की बात करें तो कोशिश ये है कि अगर 220 मिलियन छात्र 12वीं कक्षा पास करते हैं और उनमें से 150 मिलियन शायद कॉलेज नहीं जाते. वर्तमान में there are 288 million children in the school system and around 29 million in the higher education system. और प्रधानमंत्री जी ने इस चिंता को व्यक्त किया था जब पहले सत्र को उन्होंने संबोधित किया था. उन्होंने कहा उस बच्चे का क्या जो कक्षा 8 के बाद काम करने निकल पड़ता है और अपनी शिक्षा को छोड़ देता है, उसकी एंट्री वापस शैक्षिक समुदाय में कैसे हो. तो नवंबर 11, 2015 में 14 में हमने समवय नाम का एक मैट्रिक्स महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों राष्ट्र को समर्पित की, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप सिस्टम में कैसे आ सकते हैं और अपनी पूरी पढ़ाई करके सिस्टम से वापस बाहर डिग्री के साथ कैसे जा सकते हैं, ये पूरा मैट्रिक्स हमने राष्ट्र को समर्पित किया. अब जो स्वयं नाम का प्लेटफॉर्म बन रहा है उसमें भी मेरा प्रयास है कि कक्षा 9, 10, 11, 12 अगर आपने 8वीं छोड़ दी हो तो आप कक्षा 9, 10, 11, 12 भी कर सकते हैं. उसके बाद अपना डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं और कुछ हद तक ब्लेंडेड वर्जन में कुछ सेमेस्टर आप डिग्री कोर्सेज का भी इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं. मतलब प्रयास ये है जो बहुत मेधावी छात्र हैं वो तो लगातार पढ़ते रहेंगे, कॉलेज जाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन, मेधावी हो या ना जो छात्र इतना उत्तीर्ण भी नहीं होता कागज पर, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए कि वो डिजिटल इंडिया का सहारा लेके कम से कम दोबारा सिस्टम में अपने आप को अटैच कर सके. और स्किल इंडिया में किस तरह से एचआरडी मिनिस्ट्री की भूमिका रहेगी? क्योंकि स्किल इंडिया की भी अगर बात करें तो शिक्षा भी जरूरी है, वोकेशनल स्टडीज भी जरूरी है. क्या वोकेशनल स्टडीज केवल ऐसे छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वोकेशनल स्टडीज एक फॉल बैक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शन होना चाहिए. और मुझे लगता है वो ऑप्शन को वो गरिमा प्रदान किया है प्रधानमंत्री जी द्वारा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक अलग से बनाकर. जिस प्रकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम का आगाज हुआ वो अपने आप में एक संकेत है कि स्किल इज नॉट एन ऑप्शन यू फॉल बैक ऑन जस्ट बिकॉज यू फेल ऑन अदर फ्रंट्स. स्किल इज अ वेरी डिटर्मिन्ड चॉइस यू मेक फॉर योर सेल्फ इन योर करियर. तो हमारी कोशिश ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन में कैसे हम स्किल को इन्फ्यूज करें, वो प्रयास हमारे कुछ स्कूलों में चल रहा है. इतना सारा प्रयास चल रहा है आपकी तरफ से, फिर इस तरह की खबरें आती हैं कि आप एक दिन नाराज हो गई, आपने फाइल फेंक दी. हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ मैंने किस पे फेंकी. मैंने 2-3 लोगों से पूछा मैंने फेंकी किस पे, अभी तक जवाब नहीं आया. आप इतनी नाराज हो गई कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें मतलब स्टील फ्रेम और बैकबोन कहा जाता है हमारी गवर्नमेंट का, वो अब अपना कार्डर वापस जाना चाहते हैं मंत्रालय में. नहीं, देखिए मेरे यहाँ से जो 1-2 लोग गए हैं, रिपैट्रिएट हुए हैं, एक के तो पति का ट्रांसफर हो गया था इसलिए वो भी जाना चाहती थी, दूसरे अपने कैडर में लौटना चाहते थे मेरे आने से पहले. मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उस फाइल को साइन किया. तो मतलब आपकी नाराजगी, और क्योंकि 2 तरह की कहानी आती है. एक आपने अपने मैं आपको बताऊं गौरव जी, जितना मैंने किया है ना ये तभी संभव है जब ब्यूरोक्रेट्स भी संग हों.
ये संभावना तब उत्पन्न नहीं होती, मंत्री अकेले नहीं कर पाता सब कुछ। और मुझे लगता है अक्सर महिलाओं के बारे में ये चिंतन ज्यादा होता है कि बड़ी टेम्परामेंटल होती हैं। पुरुषों के बारे में आप कभी ये प्रश्न अथवा ये आरोप सुनेंगे नहीं, उन्हें टफ माना जाता है। महिला टफ क्वेश्चन पूछती है तो टेम्परामेंटल कहलाती। यहाँ महिलाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन जितनी है शायद वो मेरी बात को समझे। नहीं, लेकिन आपको हालांकि हाँ टफ काफी माना जाता है आपके मंत्रालय में, क्योंकि आप सवाल पूछती हैं। तो ये जो क्लीक जो आरोप है कि ये क्लीक है जो इस परिवर्तन को नहीं होने देना चाहता, उससे आप कैसे जूझ रही हैं? मैं नहीं जूझती। एक बहुत ही वेल नोन महिला मेरे पास आई जो लेखक भी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, अगर आप रिफॉर्म चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर शुड बी गिवन अ फ्री हैंड एंड देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो रेगुलेशन। तो मैंने कहा कि नो रेगुलेशन का मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझे बहुत सम्मान के साथ समझाने का प्रयास किया कि नो रेगुलेशन का मतलब कि देखिए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनेंगे प्राइवेट सेक्टर द्वारा, और अगर वो कॉलेज अच्छा ना हो तो नहीं चलेगा, जनता नहीं जाएगी। मैंने कहा कॉलेज अच्छा ना होने की परिभाषा क्या है? मतलब कोर्सेज खराब हैं, टीचर नहीं आता है। तो मैंने कहा बच्चों का क्या होगा? वो मार्केट कोर्स करेक्शन कर लेगी। अब मैं छात्रों को किसी प्राइवेट सेक्टर के उस पे नहीं छोड़ सकती दया पे कि आपको एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हैं, रिफॉर्म की दृष्टि से हम अपने हाथ खींच रहे हैं ताकि भाई हमारी जय जयकार हो न्यूज़पेपर में। कहीं ना कहीं एक बैलेंस रखने की जरूरत है, जहां पे मैं प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर ना करूं, वो लोग जो रेगुलेशन का सम्मान करते हैं उनकी सहायता और उनका सम्मान करूं, और साथ ही जवाबदारी ये बनती है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज की दृष्टि से अपने बच्चे को ना भेजे, एक इस भावना के साथ भेजे कि नहीं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में बेहतर हो और उसमें हम अपने बच्चों को भेजें। जो राजनीति आपके खिलाफ लामबंद सी दिखती है कि चाहे विपक्ष हो, वाम दल हो या राइट विंग हो, कांग्रेस हो, अगर वो लामबंद होते हैं आप उससे फिर कैसे निपटेंगी? क्योंकि सवाल वो कई तरह के उठाते हैं। नहीं, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। जैसे कि आपने एक एक नाम लिया तो मैंने एक एक व्यक्ति का इतिहास बताया। मुझे लगता है कि अगर मैं उन सब के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे के अपना वक्त जाया करूं तो काम पर वक्त कम मेरा लगेगा। इसलिए मुझे लगता है उनका काम है राजनीति करना, उनका काम है प्रश्न उठाना, और मेरी जिम्मेदारी है प्रश्नों का उत्तर देना। राष्ट्रपति, एक खबर यह आई कि वो जरा नाराज थे जिस तरह से आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को हटाया गया, या यूं कहे जिस द्रुत गति से उनके त्यागपत्र को मंजूर किया गया। इस बात में तीव्र गति से कि गति कम थी? आरोप तो यही था, तीव्र है। हाँ। ये आरोप है पक्का। अब मैं आपको सिलसिला थोड़ा बता देती हूँ। ऐसा है कि आईआईटी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन हमारे पास आया तो हमने आईआईटी के चेयरमैन से पूछा कि ये रेजिग्नेशन आया है, इसका हम क्या करें, आप एडवाइस करें। आईआईटी चेयरमैन ने हमें लिखित में भेजा कि बोर्ड की ओर से हमारा निवेदन है कि इस रेजिग्नेशन को स्वीकार ना किया जाए। हमने आईआईटी बोर्ड का सम्मान करते हुए रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझसे स्वयं आईआईटी के चेयरमैन मिले, उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि कुछ समय बाद मैं डायरेक्टर का ये इस्तीफा वापस लूं और आप इस विषय को वहां पे छुड़वा दीजिएगा। मैंने उसका सम्मान करके कहा एज यू विश, अगर आपको लगता है डायरेक्टर को अपना रेजिग्नेशन वापस लेना चाहिए तो ये आपका विषय है, आप हमें सूचित कर दीजिएगा। कुछ महीनों बाद आईआईटी बोर्ड का हमें दोबारा पत्र आता है कि काइंडली एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। हमने कहा ठीक है, अगर आईआईटी बोर्ड की अगर ये उनका निर्णय है तो अब हम ये कागज महामहिम राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो ये तीव्र गति हुई कि कम गति हुई कि आईआईटी का सम्मान हुआ, ये आपका निर्णय है। क्या इस खबर में सच्चाई कि राष्ट्रपति प्रसन्न नहीं थे इस बात से? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी से संबंधित जो भी खबर है उसकी पुष्टि आप राष्ट्रपति जी से करें तो बेहतर है। मैंने आपको श्रृंखला बता दी है। जी, आरोप यह भी लगा कि दिल्ली आईआईटी में ही योग गुरु बाबा रामदेव आए, उन्नत भारत की बात हुई और वहां पर एक बार फिर सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और वो भी आईआईटी जैसे स्तर के। देखिए 2010 में जब मैं मंत्री नहीं थी, किसी एक रूरल डेवलपमेंट के कार्यक्रम में कुछ लोगों को बुलाया गया। वो लोग शायद राइट विंग का खिताब रखते होंगे, लेकिन उस वक्त मंत्री मैं नहीं थी, मंत्री कांग्रेस के एक नेता थे।
तो अगर आप कहते हैं कि IITs ऑटोनमस हैं, तो आपकी ऑटोनॉमी भी सब्जेक्टिव या सिलेक्टिव नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते आपकी ऑटोनॉमी का ये हिस्सा मुझे पसंद है लेकिन ये हिस्सा पसंद नहीं, इसमें मैं हस्तक्षेप करूंगी। लेकिन आपके हस्तक्षेप के आरोप लगते रहते हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो या IIT मद्रास हो, या यूं कहें और IITs की भी कि कहाँ कौन सिलेक्ट होता है, नॉनवेज खाया जाए, कहाँ नॉनवेज नहीं। वो नहीं नॉनवेज वाला भी जो गौरव जी, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, वो सर्कुलर भी पल्लम जी के राज में चला था, मेरे में नहीं। वो मैं प्रूफ कर सकती हूँ। आरोप आप पर क्यों लगते हैं? क्योंकि आई मेक गुड न्यूज, आई गेस आई मेक गुड कॉपी। आई एम सॉरी, कली सिटिंग दिस, आई एम सॉरी बट आई डू। तो आपका लक्ष्य, आपके पास आरोप और हैं? हाँ, आरोप पढ़ लीजिए मैं जवाब दे देती हूँ। आरोप तो बहुत है, मिथ्या है या नहीं ये नहीं, मैं तो प्रूफ कर सकती हूँ कागज के साथ। तर्क आपको देना है कि नहीं, मेरे को तर्क नहीं, मैं कागज के साथ प्रूफ कर सकती हूँ। मैंने अभी जो कहा वो सब विद प्रूफ कह रही हूँ। तो बाबा रामदेव का वहां जाना या ये कहना कि गाय से संबंधित वो मेरा विषय नहीं है, वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, वो उनका विषय है। और आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है वहां नहीं, आप प्रूफ करके दिखाइए मेरा कौन सा कागज है। मैं तो केवल कह रहा हूँ कि इस तरह की वही तो प्रॉब्लम है कि आप कह सकते हैं और मुझे अपना वक्त जाया करना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है क्योंकि कोई कागज नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहे हैं उसके लिए मेरे पास प्रूफ है कि ये आपसे पहले जो HRD मिनिस्टर थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, वहां पे रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम कब से चल रहा है, थोड़ा जाके शोध कीजिए। दर्शकों के पास कई सवाल हैं जो दर्शक भी पूछना चाहते हैं। आरोपों का ये सिलसिला लगातार, कलीपुरी जी का भी एक सवाल है, नहीं? ओके, अभिजीत। Hi, Smriti. Going back to the ICHR case, which we wrote about, while investigating the case, Siddharth Rai, who had done the story, tried to get. Utpal had done the story. Utpal Kumar. He tried his level best to get more clarity on funds, on how they were spent, in which way they were spent. We found that there's a great lack of transparency in the... At ICHR? In ICHR. So, and 44 lakhs spent on a book that was not, written finally, 43 years for a project. Who is accountable if not finally the ministry? How does one, ensure there is accountability? I have, in the past 1 year, asked for an examination of how our bodies function. The reports on UGC and AICT have been received by the ministry. There is reviews of many institutions and ICHR is one of them. Progressively, those reviews will be done. The questions that your article posed are in fact very critical to the kind of reviews that we are doing. And these reviews are not limited to only higher education. In fact, I have asked some people even in the school division to see how our Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas have been functioning. What is the infrastructure challenges? So all these questions that you have posed with regards to one body are the questions that I've been asking for the past 1 year within the ministry. On some questions, the answers have been given to me. Post the review of AICT, UGC, there are some post corrections which need to be made within these two bodies, which we have presented to the bodies and asked them for their views. Similarly, the exercise will be undertaken for other bodies as well. So the question pertinently that you asked me about funding and who is answerable for so many years for a project which has taken 43 years and is still not submitted, well, that answer and that responsibility rests with the ICHR. Progressively, who within the ICHR has not been proactive enough to bring to conclusion these particular projects, that is the responsibility that will be fixed in the review that we do. Smriti ji, I am Professor Kapil Kumar from IGNOU. I'd like to point out here is the first victim of the UPA 1 government standing in front of you, who was holding the charge of Member Secretary ICHR. At that when I had pointed out these things, it is not 44 lakhs, these runs into crores. And I was the person removed. Manish is sitting next to you. You can ask about my CV as a historian from him. And these people didn't raise a voice.
गौरव सावंत जी, आप जो एक बार बार सवाल कर रहे हैं, अगर मैडम इजाजत दे तो मैं उसका जवाब आपको दे दूं कि ये लोग अब क्यों हल्ला मचाते हैं। हमारे देश में एकेडमिशियंस को राग दरबारी गाने की आदत हो गई है, और जब उनको वो पैटर्नेज नहीं मिलता, उनका पैटर्नेज खत्म हो जाता है, तो वो लोग राग विलाप गाना शुरू कर देते हैं। अमृता सेन साहब नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के पेपर लिख रहे हैं, जो चांसलर से हटे हैं। एक कॉलेज की रीडर को, जो प्रोफेसर भी नहीं है, उसको नालंदा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनवाया गया। 5 साल की आउटपुट वहां की देखिए उस यूनिवर्सिटी की, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल सैलरीज, उनके टीएडीए बिल्स चेक करवाइए। और क्यों बनवाया गया? ये जो लेन देन चलती थी, किसी ने आज तक ये नहीं रेस किया कि प्राइम मिनिस्टर की लड़की को इन्फोसिस ने 50 लाख रुपए का बेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया गया, और उस पैनल के चेयरमैन थे अमृता सेन साहब। Very, very pertinent point. I'm coming to this point. Yeah. So ये जो वन साइडेड है, माफ कीजिए, अभद्र हो जाएगा, लेकिन वो पिक्चर का गाना है। नहीं, कि मैं करूं तो करेक्टर ढीला है, वो करें तो रास ढीला है। हम लोग एक मिनट सुनिए, हम लोग एक नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पे मैं मैडम से एक सवाल करना चाह रहा हूं। जी मैडम, आपने जिन फोर्सेस you have pointed out, there are certain forces in the UGC today who are out to derail the government, and I am giving you 3 examples. My request to you, sir, is that whatever issues you have with the UGC, if you can give me a written issue, I'll put it up in terms of examination within the UGC. You know, because last I checked, this was the Mail Today conclave. Ma'am, the problem is this, that in one go they have done away with the PhDs before 2009. Thousands of ad hoc teachers, temporary teachers are affected. Today I am a professor. My PhD was way back in 1980. As per this regulation now, if I apply for a professorship, my PhD will not be recognized. This is a definite move, you see, and I'm making a definite charge against the UGC chairman. अच्छा, तो हम वो स्पेसिफिक चार्जेस पर इत्मीनान से बात करेंगे। अभी हम लोग शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से आपने जो विषय दिया है उसको मैं यूजीसी से उसका उत्तर मंगवाती हूँ। हम लोग अगर अपने इतिहास की भी बात करें, इतिहास की पुस्तकों में और एनसीईआरटी की किताबों में अगर कुछ शब्द हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे किस तरह से हम शहीद भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, किस तरह से हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं एक मंत्री के नाते नहीं, एक महिला जिसका बच्चा खुद स्कूल जाता है, उसके नाते आपके साथ एक विषय शेयर करना चाहूंगी। मेरे पुत्र की पुस्तक में लिखा था कि there were 2 kind of people who took part in the Indian freedom struggle. One were the extremists and one were the nationalists. और extremist के नीचे जो नाम लिखा था वो था लोकमान्य तिलक का। तो वो बच्चा जो सुबह के अखबार में पढ़ता है कि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ओसामा बिन लादेन, वही अपनी स्कूल की किताब में पढ़ता है कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक्सट्रीमिस्ट था उसका नाम था लोकमान्य तिलक। अब क्या उसका बदलाव होना चाहिए? कब होगा? आपको 1 वर्ष हो गया अब। हाँ, अब मैं अगर एनसीईआरटी से कहती हूँ कि क्या ऐसे अपशब्द लिखे हैं, तो एनसीईआरटी कहेगा कि आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बदलना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आप नई शिक्षा नीति बनाएंगे और उसके बाद ही पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आएगा। और अगर उससे पहले मैं एनसीईआरटी से कहती हूँ कि आप इस विषय को क्यों नहीं बदलते हैं, तो मेरे ऊपर आरोप आएगा कि आप एनसीईआरटी में दखल दे रही हैं। लोकमान्य तिलक को सवाल बहुत है, मतलब मेरी भी सवाल जी पूछे आप। Firstly, I must compliment you because you're really trying to bring a change and we are proud of it. I have just 1 or 2 suggestions on the educational policy. जी. One is, we are trying the Skill Development Council and all. My suggestion is that in countries like Germany, Japan and a lot of other countries where the skills, institutions or factories which give training to skills, their curriculum, one, they should get tax incentives, and secondly, people should get degrees after a certain level of training, so that the 90% who are not getting admission on the campus
do not feel frustrated. Second is, there are some colleges like Dyal Singh College in Delhi University. I've been president of Delhi University Students' Union and I was a part of the Kothari Commission report. Nothing has been implemented except one or two things. But what is needed is that we have millions of dollars worth of in the libraries, in the laboratories, but we have only one shift. Now countries like China, क्या ये संभव है? let me complete. एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी मेल टुडे से बातचीत करते हुए, जिसमें उनका ये कहना है कि आईआईटी, आईआईएम किसी भी ऐसे स्वायत्त संस्थान में वो दखल नहीं करती हैं। इसी के साथ तमाम आरोपों को नकारती हुई स्मृति ईरानी